in the national capital. It's rather grim. The state of affairs in the national capital as well, where the national capital has been witnessing heavy rains. In fact, at least 8 rain-related deaths have been reported in the last 24 hours. But let's put out newsbreak in relation to the NEET scam investigation. This is the Hazaribagh link. The accomplice of Hazaribagh school principal has been held by the Central Bureau of Investigation. So a fresh arrest that's been made by the Central Bureau of Investigation in the NEET scam. This is the Hazaribagh link, the Jharkhand link, which has surfaced in the entire scam investigation. Now note, this is the Oasis school in Jharkhand's Hazaribagh, which is said to be the epicenter of the scam. While the school principal has been taken into custody, it's another arrest that's been made by the CBI, an aide of the school principal who's also now been taken into custody by the Central Bureau of Investigation. Let's go across to Jatin. He's on the ground at that very location. Jatin, give us more details. What do we know about this aide of the school principal who's also been arrested by the CBI now? जी बिल्कुल, देखिए कल हजारीबाग के ओएसिस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन इस मामले में अब थर्ड अरेस्ट हो गया है। जमालुद्दीन इस शख्स का नाम है, उसके घर के बाहर मौजूद है। हजारीबाग का ये आप घर देख रहे हैं। यहाँ पर जमालुद्दीन और सलाउद्दीन 2 भाई रहते हैं। दोनों खुद को स्थानीय पत्रकार यहाँ पर बोलते हैं। कल सीबीआई ने जमालुद्दीन से भी पूछताछ की और आज जाकर जमालुद्दीन की जो गिरफ्तारी है इस मामले में की गई है। हजारीबाग से ये तीसरी गिरफ्तारी है। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि प्रिंसिपल, जो कि ओएसिस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है, जिनकी गिरफ्तारी कल की जा चुकी है। जमालुद्दीन और प्रिंसिपल के गहरे रिश्ते थे, जानकार थे, कई फोटोज उनकी साथ में थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि 1 मई से लेकर 7 मई तक जो बातचीत की गई फोन पे प्रिंसिपल द्वारा, वो जमालुद्दीन से सबसे ज्यादा थी। और इन्हीं सबूतों के आधार पर, इन्हीं सबूतों को बेस बनाकर सीबीआई ने अब जमालुद्दीन की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की है। हमने जमालुद्दीन के भाई सलाउद्दीन से भी बातचीत करने की कोशिश की। हम उनके घर के अंदर भी गए, सलाउद्दीन से तमाम सवाल जवाब किए, प्रिंसिपल से, नजदीकी प्रिंसिपल से दोस्ती को लेकर, लेकिन सलाउद्दीन ने साफ तौर पर इनकार किया। लेकिन कल सलाउद्दीन से भी तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ जो है वो की गई है। अभी सलाउद्दीन इसी घर के अंदर मौजूद है। हम लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सवाल पूछा कि क्या जमालुद्दीन, सलाउद्दीन और प्रिंसिपल के बीच में रिश्ते थे। इससे पहले जो घोटाले हुए, चाहे वो शिक्षा घोटाला हो या बीपीएससी घोटाला, उसको लेकर भी इन दोनों भाई का जिक्र सामने आता था, लेकिन कभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और अब जाकर सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अब जमालुद्दीन की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी जो है वो की गई है। तीसरी गिरफ्तारी है। पटना में इन तीनों को आमने सामने बिठाकर जो सीबीआई इसमें सवाल जवाब कर रही है। जी। All right, Jatin, thank you for the moment. So, CBI interrogating all 3 accused in connection with the NEET scam. For now, we move on to more related news break that's coming in. This one from the state of Maharashtra. In fact, this is the Latur connection that has surfaced in the entire NEET scam investigation. Gangadhar, who's an accused in the NEET scam, has been arrested by the Central Bureau of Investigation from Mussoorie. The arrest marks a crucial step in the ongoing investigation into the NEET examination scandal, which highlights the authorities' efforts to clamp down on malpractices and ensure exam integrity is in place. So, another arrest that's been made by the Central Bureau of Investigation. This is in relation to the Maharashtra angle in the entire NEET scam. It's accused Gangadhar, who's been arrested from Mussoorie in Uttarakhand, as he was allegedly involved in the NEET paper leak with that Maharashtra angle in focus. Let's go across to Satya Prakash, who's getting us the details. Satya, take us once again through the facts known so far, especially about this accused who we understand has been arrested from Mussoorie in Uttarakhand. देखिए समीक्षा, इस मामले में लातूर पुलिस ने जो एफआईआर 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था, उसमें 2 फरार थे। एक अक्यूज गंगाधर था। गंगाधर को आज सीबीआई ने मसूरी से अरेस्ट किया है। जो जानकारी मिल रही है कि एक दूसरा जो शख्स है उससे भी कहीं कहीं सीबीआई उसके टच में है और थोड़ी देर बाद ही ये जानकारी सामने आएगी कि वो दूसरे शख्स को भी अरेस्ट कर सकती है। फिलहाल इस मामले में
3 लोग को गिरफ्तार किया है। लातूर का जो नीट का मामला आया था, इसमें 3 लोग को अरेस्ट किया है, जिसमें संजय यादव है, जलील पठान है, और तीसरा जो आरोपी आज जो सीबीआई ने अरेस्ट किया है मासूरू से, गंगाधर वही शख्स है जो कि पूरी तरह से दिल्ली का रहने वाला है, और जो तीनों टीचर हैं महाराष्ट्र से, उनसे लगातार में टच में था। पैसे का लेन देन, साथ ही मीटिंग जो हुई है, जो स्टूडेंट से मिलना है, सारी चीजें गंगाधर करता था। लातूर का जो मामला है, पूरा प्राइम अक्यूज जो माना जा रहा है, गंगाधर ही माना जा रहा है, और सीबीआई ने आज गंगाधर को अरेस्ट कर लिया है। Yes, Satya, thank you for the moment. So, Satya, they're getting us details in this entire scam. But to tell our viewers, this is the Maharashtra angle which is in focus as accused. Gangadhar has been arrested from Mussoorie. Let's go across to Satya Prakash again, who continues to be with us. Satya, एक बार और हमें फिर से बताइए, ये जो महाराष्ट्र एंगल है पूरा नीट स्कैम में, लातूर का जो कनेक्शन निकला है, जो अक्यूज्ड अब मसूरी से पकड़ा गया है सीबीआई से। देखिए समीक्षा, लातूर पुलिस ने 4 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। पहले एटीएस ने पूछताछ किया था, इसके बाद लातूर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें जलील पठान जो टीचर है, संजय यादव जो टीचर है, और एक अक्यूज और है जो कि आरोपी वो फरार है। तीसरा जो नाम था गंगाधर का नाम था। गंगाधर जो कि जलील पठान, संजय यादव जो दोनों टीचर हैं, उनसे लगातार में टच में था, और प्राइम अक्यूज, मेन अक्यूज जो है गंगाधर ही बताया जा रहा है कि यही सारा जो नीट पेपर का मामला, जो कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले थे, सारा चीज कहीं कहीं गंगाधर करता था। पैसे का लेन देन जो जलील पठान के मोबाइल फोन जब पुलिस ने जब्त किया, उसमें पाया कि जलील पठान से कई बार बातचीत हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है, साथ ही कई डॉक्यूमेंट ऐसे थे कि गंगाधर से लगातार टच में था। तो कहीं न कहीं सीबीआई लगातार गंगाधर को ढूंढ रही थी। आज मसूरी से गंगाधर को अरेस्ट किया है, और फिलहाल जो जानकारी मिल रही, जो तीसरा आरोपी है, इसमें 4 लोग आरोपी हैं, जिसमें 3 लोग अरेस्ट किया गया, एक आरोपी भी फरार है। लातूर पुलिस के साथ साथ सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, पूरा हैंडओवर सीबीआई ले ली है, लेकिन जो चौथा आरोपी है अभी फरार है। गंगाधर को अरेस्ट कर लिया गया है, इस मामले की पूरी जांच कर रही है सीबीआई।